Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you the classification of passive immunity. In previous few lectures, I have described you there are two basic types of immunity found in our body. The first, the innate immunity. Second one is the acquired immunity. Innate immunity by means of different kinds of barriers, and acquired immunity by means of different kinds of antibody-based immunity. The antibody based immunity either available in our body, that is either formed inside the body or obtained from any other source. On this basis, further the active immunity and passive immunity. The acquired immunity further on the basis of where do the antibody formed may be the acquired active immunity and acquired passive immunity. Acquired immunity are basically two types: acquired active and acquired passive. If antibody formed inside the body, if the antibody formed inside the body, there will be the acquired active immunity. If the antibody formed outside elsewhere from the body and introduced inside the body, there will be acquired passive immunity. All about acquired active immunity is over. When acquired immunity possess the immunity in our body and antibody form inside the body, then the active acquired immunity. And further the active acquired immunity are two types: the active natural and active artificial. Active natural by means of pox virus, by means of pox attack. Example आप लिख लीजिएगा. Acquired active artificial का example by means of vaccination. वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, मेमोरी ऑफ पैथोजेंस, प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन. तो आप पूरा डिटेल वैसे ही लिख लीजिएगा. फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लोअर देन द सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ हैविंग नो एंटीबॉडी फॉर्म एंड एंटीबॉडी रिक्वायर्ड टाइम टू टेक इनसाइड आवर बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर्म टाइम टू टेक. ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक समरी बना के लिख लीजिएगा. इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू the classification of passive immunity, that is part third of acquired immunity. Part 1 was total immunity, part first was the total immunity, part second was the acquired active immunity, and part third will be discussed in this video lecture, and that is the acquired passive immunity. Now let us talk about acquired passive immunity. Immunity that introduced elsewhere, immunity that introduced elsewhere, artificially formed elsewhere and introduced inside the body, there will be acquired passive immunity. In this way, it may be the natural and artificial as like the common acquired active immunity. That is, it is the passive, it may be the natural and artificial. Acquired passive immunity may be natural or may be artificial, but both having the similar concept, that is in both way the immunity formed outside of the body and introduced. दोनों के केस में कॉमन सी बातें क्या है? बॉडी है, तो दोनों के केस में बॉडी के बाहर से एंटीबॉडी, दोनों के केस में बॉडी के बाहर से एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किया. इस केस में भी बाहर से एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस केस में भी बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा. और ओवरऑल पहले पार्ट में जब मैं आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस बता रहा था, उसमें ये बताया था कि ओवरऑल पैसिव इम्यूनिटी फास्टर होता है एक्टिव से. ठीक है, अब आते हैं बॉडी में जो एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस हो रही है वो नेचुरली बन रहा है या आर्टिफिशियली मैन मेड अप्रोच के थ्रू बन रहा है. इस बेस पे वो आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा. ठीक है, इसमें नो मैन मेड अप्रोचेस, नो मैन मेड approaches involved, that is they are naturally formed antibody, naturally formed antibody. The antibody that introduced inside the body are actually naturally formed antibody. An example, antibody IgA, antibody IgA that obtained by milk feeding baby from the colostrum, from the mother's milk, that is colostrum, that is it is from the colostrum. तो इस केस में क्या होता है? सपोज दैट ये बेबी है, ये क्या है? बेबी,
और ये मिल्क फीडिंग कर रहा है, मिल्क फीडिंग, ये मिल्क फीडिंग कर रहा है। और ये क्या मदर है, ये मिल्क फीडिंग करा रही है, तो मदर्स के बॉडी में एंटीबॉडी बन गया। सपोज दैट एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी कहां पे अवेलेबल है, मदर्स के मिल्क में, यानी कि कोलोस्ट्रम में। तो जब मिल्क फीडिंग होगा तो मदर्स का जो मिल्क है वो बॉडी में, किसके बॉडी में, ये बेबी के बॉडी में ट्रांसफर होगा। अब ये इस तरीके से बॉडी में, इसके बॉडी में जो एंटीबॉडी आया वो एक्चुअल में इसके बॉडी में नहीं बना, वो किसके बॉडी में बना, मदर्स के बॉडी में बना। इंट्रोड्यूस तो बाहर से ही बना, इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएसए, एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस फ्रॉम elsewhere, एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस फ्रॉम elsewhere। इंट्रोड्यूस का मतलब नेचुरली इंट्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क फीडिंग के दौरान बाहर से आ रहा है। एंड बेबी गेट फास्ट इम्यून, बेबी बिकम फास्ट इम्यून एंड बेबी गेट फास्ट इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी जरूरत है। अभी उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडी हैं जो अभी बोन मैरो ही पूरी तरह से नहीं डेवलप हुआ, स्प्लीन नहीं डेवलप हुआ, थाइमस नहीं डेवलप हुआ, ठीक है। तो पूरा इम्यूनिटी उसका अभी इधर उधर है, उसकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत है क्योंकि बॉडी वीक है। तो उसमें मिल्क से, उसको कोलोस्ट्रम से उसको क्या मिल जाता है, एंटीबॉडी मिल जाता है। दिस काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी इज ऑल ओवर द नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेचुरल इम्यूनिटी आर दोज काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी इन विच नो मैन मेड अप्रोचेस इन्वॉल्व एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इजीली डन इन आवर बॉडी, ठीक है। इस बच्चे के बॉडी में एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया और पैथोजेंस के लिए, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली किसके लिए होता है, फॉर वायरसेस एंड बैक्टीरिया, बिकॉज अर्ली डेज में इन्हीं दोनों का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है बच्चे, ठीक है। तो एंटीबॉडी दैट फॉर्म्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी, दैट मीन्स द आउटसोर्स, and introduced inside the baby, there will be the body, then the body get immuned by the antibody that obtained from the mother's milk, there will be the पैसिव नेचुरल। इसमें मदर्स मिल्क को भी आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया, इंट्रोडक्शन भी आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू तो हो नहीं रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डायरेक्ट बाहर से आ रही है, देयर विल बी द ये नेचुरल इम्यूनिटी डायरेक्ट बाहर से आ रही है, लेकिन बाहर से आने की वजह से ये पैसिव क्यों है, बाहर से आ रही है। नेचुरल क्यों है, बिकॉज इसमें मैन मेड अप्रोचेस है, ठीक है। अब आते हैं पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिस्कशन करते हैं। इसको इरेज कर दें, फिर पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिस्कस करते हैं। Artificial means the man-made approach is required. Tools, technology, chemicals, everything is required for the development of antibody elsewhere, and introduction of that kinds of antibody is the inside the body. It means suppose that ये body है, ठीक है, body, और ये body tool, ये body 1 है, ये क्या है, body टूल। बॉडी 1 को किसी बीमारी की वजह से या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की वजह से बार बार एंटीबॉडी की कमी झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस बॉडी को, बॉडी 2 को पहले इम्यून्ड किया जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाई जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से बनाई जाए, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गया, इस बॉडी के अंदर एनीवे केमिकल के थ्रू या किसी भी थ्रू ये एंटीबॉडी इस बॉडी के अंदर बन गया। ये क्या है, एंटीबॉडी बन गया। आर्टिफिशियल एंटीबॉडी नहीं बना है, नेचुरल एंटीबॉडी बना है, लेकिन आर्टिफिशियल अप्रोचेस के थ्रू इसके बॉडी में एंटीबॉडी बना, यानी कि इसके बॉडी में चाहे आर्टिफिशियल पैथोजेंस इंट्रोड्यूस किया गया हो या इसको ऐसे ही नेचुरली छोड़ दिया गया हो, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल फूड और फूडर्स के थ्रू इसके अंदर क्या बनाया गया है, एंटीबॉडी बनाया गया है। वो एंटीबॉडी नेचुरल ही है, ठीक है। एंटीबॉडी हमेशा नेचुरल ही होते हैं, कभी भी आप नेचुरल में चाहे आर्टिफिशियल में कहीं भी जाए, एंटीबॉडी हमेशा नेचुरल ही होते हैं, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि उसमें मैन मेड अप्रोचेस है कि नहीं। आप वैक्सीनेशन के केस में जाएंगे तो एंटीजन नेचुरली नहीं होते हैं, वहां एंटीजन आर्टिफिशियली, एंटीजन आर्टिफिशियल हो सकता है लेकिन एंटीबॉडी कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होता है। आर्टिफिशियल हमारी बॉडी में एंटीबॉडी टिकेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे वैक्सीन के केस में पैथोजेंस जो
आर्टिफिशियली था, वो बॉडी में नहीं टिका था, वैसे अगर हम कभी ट्राई भी करें एंटीबॉडी बनाने के लिए तो आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रिपेयर ही नहीं होगा या तैयार ही नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज है वो फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नकली वाला एंटीबॉडी असली वाले पैथोजन से कैसे लड़ पाएगा। ये तो क्लियर है कि असली वाला पैथोजन जो है, असली वाला जो एंटीबॉडी है वो असली वाले पैथोजन से भी लड़ा था, नकली वाले पैथोजन से भी लड़ा था, लेकिन असली जो नकली वाला अगर एंटीबॉडी बनाएंगे तो वो असली वाले पैथोजन से कैसे लड़ पाएगा। इसलिए एंटीबॉडी कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होते। कॉन्सेप्ट आपका ये होना चाहिए कि एंटीबॉडी नेवर भी आर्टिफिशियल। तो ये एंटीबॉडी जो नेचुरली बना, आर्टिफिशियल तरीके से बना, इसके लिए एंटीजन एंड आर्टिफिशियल था। इस बॉडी में आर्टिफिशियल एंटीजन इनपुट किया गया और इस बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली एंटीजन की वजह से जो नेचुरल एंटीबॉडी बना, अब उस एंटीबॉडी को रिकवर किया गया और रिकवर करके एक ट्यूब वगैरह में रखा गया। ठीक है, अब इसको जरूरत के हिसाब से इस बॉडी में फास्ट इम्यूनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। सपोज दैट कुछ टॉक्सिन्स या कोई पैथोजन अटैक कर गया तो उससे पहले ही इस एंटीबॉडी, देखो इसमें क्या है, एंटीबॉडी, कलेक्टेड एंटीबॉडी, इसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा बॉडी वन की, और बॉडी वन क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। जैसे प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा को रिकवर कैसे किया जा रहा है, नेचुरली, आर्टिफिशियली रिकवर किया जा रहा है, प्लाज्मा को आर्टिफिशियली रिकवर किया जा रहा है, तो वहाँ मैन मेड अप्रोचेज है, उसको टेक्निकली जो है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ पे मैन मेड अप्रोचेज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन जब हुआ तो बॉडी क्या हो गया, इम्यून बॉडी हो गया। ठीक है, और इसको तुरंत प्रॉब्लम से बचाया गया, तुरंत प्रॉब्लम से। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए इसका, ATS, एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटनस सीरम। देखो ये सीरम क्या होता है, 11th में बताया गया था कि बॉडी में ब्लड है और ब्लड में दो पार्ट है, प्लाज्मा और उसका हिमेटोक्रिट्स। तो प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज वगैरह है, उसको अगर निकाल दें तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दैट विल बी द सीरम, और उसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी घूम रहा है, बॉडी फ्लूइड है ना, तो उसमें एंटीबॉडी भी घूम रहा है, तो वो प्लाज्मा विदाउट सीरम। अब उस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर है तो प्लाज्मा जमेगा नहीं, सिर्फ एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी प्लाज्मा की वजह से एंटीबॉडी की वजह से वो प्लाज्मा जो है काफी इंपॉर्टेंट है और उसको इंट्रोड्यूस किया था दूसरे की बॉडी में। तो ये सीरम क्या है एक्चुअल में, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ATS का मतलब होगा कि एंटी टिटनस, मतलब टिटनस के अगेंस्ट फाइट करने वाला प्लाज्मा किसी के बॉडी में प्रिपेयर हुआ होगा, और जैसे ही हमारा कट पिट कहीं होता है, चोट लगती है, तुरंत डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो वैक्सीन नहीं होता है, वो ATS होता है, एंटी टिटनस सीरम होता है। ठीक है, वो उसमें एंटीबॉडी होते हैं, उसमें वैक्सीन नहीं होता, क्योंकि वहाँ फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि व्हाई डॉक्टर्स प्रीफर एंटी टॉक्सिन नॉट वैक्सीन इवन व्हेन देयर इज अ कट और देयर इज एनी एक्सीडेंट और माइनर और मेजर एक्सीडेंट डन इन आवर बॉडी। तो वहां पे क्या होगा कि डॉक्टर प्रीफर करता है कि एंटी टॉक्सिन देता है, नॉट वैक्सीन देता है। रीजन क्या है, रीजन यही है, देयर इज रिक्वायर्ड फास्ट रिस्पॉन्स, सम डिजीजेस फास्टली स्प्रेड इन आवर बॉडी एंड मे काजेस मैनी फैक्टर्स, मे काजेस मैनी प्रॉब्लम्स, एंड फॉर दैट देयर इज नीड टू इमीडिएट एंड इंस्टेंट रिस्पॉन्स, फॉर दैट देयर इज नीड ऑफ ATS, that is antitoxin, not vaccine. ठीक है, सेकेंड ADS, एंटी डिप्थीरियल सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम। ये डिप्थीरिया प्रॉब्लम्स मैंने इससे बताया था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस का वैक्सीन भी प्रिपेयर किया था और बच्चों को DPT बोलते हैं, और उसका क्या है, उसका एंटीटॉक्सिन भी है। ठीक है, और वो डिप्थीरिया एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है उसकी वजह से। तो होता क्या है कि इमीडिएटली अगर डिप्थीरिया की वजह से कोई इंसान प्रॉब्लम में आता है तो उससे पहले ही हम उसका ATS वगैरह ADS दे देते हैं, एंटी डिप्थीरियल सीरम दे देते हैं, यानी कलेक्टेड प्लाज्मा से एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, AVS, एंटीवीनम सीरम। एंटीवीनम सीरम क्या होता है उसको देखेंगे आप। एंटीवीनम क्या होता है, जब स्नैक बाइट होता है
तो उस समय स्नैक के पॉइजन के अगेंस्ट, स्नैक के वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से किसी हॉर्स में, किसी और जो रिलेटेड मैमल्स है उसमें पहले से एंटीबॉडी बना जाता है। इसका प्रोसेस 11th में बताया गया होगा, मैंने खुद बताया था, ठीक है। स्लोली पहले उसके बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट किया था, धीरे धीरे उस पॉइजन यानी टॉक्सिन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटी टॉक्सिन यानी एंटीबॉडी, अगर टॉक्सिन के अगेंस्ट बनता है तो एंटी टॉक्सिन्स बोलेंगे। पैथोजेंस के अगेंस्ट बनता है तो एंटीबॉडी, पैथोजेंस बॉडी है तो उसके अगेंस्ट बनेगा तो एंटीबॉडी, लेकिन अगर किसी टॉक्सिन्स के अगेंस्ट बनेगा तो क्या बनेगा, एंटी टॉक्सिन्स। तो एंटी टॉक्सिन उस टॉक्सिन्स की वजह से, टॉक्सिन्स क्या है मैंने बताया था कि स्नैक का जो वीनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है, हिमेटोटॉक्सिक भी हो सकता है, साइटोटॉक्सिक भी हो सकता है, कार्डियोटॉक्सिक भी हो सकता है, मायोटॉक्सिक भी हो सकता है, बहुत टाइप का होता है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन्स है स्नैक में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में तमाम तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और वो इम्यूनिटी एंटीटॉक्सिन के फॉर्म में प्लाज्मा में अवेलेबल रहती है। फिर उसको स्टोर करके, ड्राई करके और उसको इंजेक्शन के फॉर्म में पैक करके रखा जाता है। जब स्नैक बाइट होता है तो इमीडिएटली जो है ये टॉक्सिन्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये एंटीटॉक्सिन इंट्रोड्यूस किया जाता है और बॉडी में जहां जहां भी टॉक्सिन्स अवेलेबल है वहां पर जाकर के बाइंड कर देता है, ठीक है। एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन की खास बात होती है कि वो अपने रिसेप्टर को ढूंढ लेता है। अगर रिसेप्टर्स बॉडी में नहीं है तो वो बीमार नहीं करेगा, ठीक है। तो होता क्या है, एंटीटॉक्सिन की वजह से बॉडी जो है स्नैक विनम से भी फाइट कर पाती है। आई होप आपको एक्वायर्ड, एक्टिव और पैसिव तो क्लियर हो ही गए होंगे। साथ में जो एक्टिव नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल पिछले वीडियो में बताया गया था, और पैसिव आर्टिफिशियल और पैसिव नेचुरल जो इस वीडियो में विद एग्जांपल आप इसको नोट्स बना लेंगे वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।